کشمیر کو مذہب کی بنیادوں پر تقسیم کرنے اور مذہبی بھائی چارے کو نقصان پہنچانے کی ہو سکتی ہے کوشش۔ وادی کشمیر کی مذہبی رواداری اور آپسی میل ملاپ کو دیکھ کر گاندھی جی نے کہا تھا کہ وادی ملک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جموں کشمیر میں پے در پہ ہلاکتوں کے بعد صلاح و مشورہ اور سول سوسائٹی کا رول انتہائی اہم۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں، انتظامی سطح پر تیاریاں شروع۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے جموں کشمیر کے تمام ڈپٹی کمشنروں سے 20 جون سے قبل تمام پولنگ اسٹیشنوں کو متحرک کرنے کی غرض سے اقدامات اٹھانے پر دیا زور۔ انتخابات کب ہوں گے؟ وادی کے مین سٹریم لیڈران بے خبر ہیں۔ وزیراعظم مودی حکومت کے 8 سال مکمل۔ جموں کشمیر میں علیحدگی پسند لیڈران اور مرکز کے بیچ میں سخت پالیسی کے ادوار جاری۔ مین سٹریم لیڈران بھی آرام اور اطمینان کی زندگی سے باہر آ کر پرامن جدوجہد کے سفر پر رواں دواں۔ مرکز نے تمام محاذوں پر اپنی پالیسی اور حکمت عملی سے یکساں سلوک روا رکھا۔ عوام بھی 5 اگست کے بعد مرکز کے وعدوں پر شب روز انتظار کے سوا کر بھی کیا سکتے ہیں۔ اور عازمین حج کا سفر اہم اور حکومت کی پہلی ترجیح میں شامل۔ انتظامیہ کی طرف سے حج 2022 کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ریزیڈنشل کمپلیکس، ڈپارچر ہال، ویکسینیشن روم، ہیلتھ سینٹر پر مزید بہتری کی ضرورت۔ قریبی تال میل بڑھانے سے محکمہ ہیلتھ کا تعاون بڑا اہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو خبرنامہ لے کر سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجم الاسلام کا سلام پہنچے۔ جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو آپ سری نگر اسٹوڈیو سے دنیا بھر میں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، شروعات کرتے ہیں جموں کشمیر سے ابھی تک کی بڑی خبر کے ساتھ۔ ناظرین، حد بندی کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد اب تمام تر قیاس آرائیاں یہ ہے کہ کیا جموں کشمیر میں اگلے 6 ماہ کے اندر اسمبلی یا ویدھان سبھا کے انتخابات کرائے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اس ضمن میں مرکز کی طرف سے کوششیں جاری ہے اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی اپنی طرف سے کوششوں کو مزید تیز اور مستحکم کر دیا۔ اگر ذرائع کا یقین کیا جائے تو چیف الیکشن کمشنر نے جموں کشمیر کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری کیے، جس میں جموں کشمیر سے اسمبلی انتخابات کی تیاریاں اور انتظامی سطح پر تیاریوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے جموں کشمیر کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ 20 جون سے قبل تمام پولنگ اسٹیشنوں کو ایک بار پھر متحرک کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ سی ای او آفس نے تمام ڈی ای اوز اور ای آر اوز اور اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر اور الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کے تقرر کے لیے تجاوزات کو بھی سامنے لایا ہے۔ حد بندی کمیشن کی جانب سے حتمی رپورٹ مرتب آنے کے بعد اور مرکز کو سونپنے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کے حوالے سے اقدامات مزید تیز کر دیے۔ 4 اگست 2019 کے بعد 5 اگست 2019 اور اب 1 جون 2022 آتے آتے جموں کشمیر میں پہلی بار ایسا ہوگا جب جموں کشمیر کے مین سٹریم پارٹیوں کے لیڈران سے کوئی افہام و تفہیم، صلاح و مشورہ نہیں جاری ہے۔ بیتے انتخابات میں ہمارا تلخ تجربہ رہا کہ جموں کشمیر کے مین سٹریم پارٹیوں کے سرپرست اپنا فیڈ بیک دیتے تھے، کیونکہ اس وقت دقت یہ نہیں تھی کہ انتخابات کیوں ہوں گے، اس وقت دقت یہ تھی کہ کیا جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال بہتر ہے یا نہیں۔ اس پہ اور بات چیت کریں گے۔ فی الحال اپنے بیورو چیف ہلال ہانجوری کے پاس سری نگر چلتے ہیں، جو میرے ساتھ براہ راست جڑے ہیں اس خبر کے پس منظر میں۔ میر ہلال ہانجوری، آپ کا بہت بہت شکریہ، استقبال ہے آپ کا اردو خبرنامے میں۔ جموں کشمیر میں انتظامی تیاریاں شروع کی جا چکی ہے، چاہے وہ مزید کمپنیاں یہاں طلب کرنی ہو، کیونکہ ایک سروے کے مطابق مزید 15,000 کے قریب فورسز اہلکار
तैनात किए जा चुके हैं, जो अलावा होंगे उस यात्रा के सिक्योरिटी कवर के लिए। गालिबन सिक्योरिटी और उसके बाद चीफ इलेक्टोरल की तरफ से डिप्टी कमिश्नरों को 20 जून से कबल वहां के पोलिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी देना। गालिबन कहीं ऐसा तो नहीं हम सुबह जाग जाएंगे और इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाला हो। बिल्कुल तजम्मुल, देखा जाए कि जिस तरह से ये अमल अब चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ही आपको देखना होगा कि दाखिला वजीर अमित शाह की जानिब से पहले ही कहा गया था कि जब हदमदी की हतमी रिपोर्ट आएगी तो उसके 6 से 8 माह के अंदर अंदर ही इलेक्शन कराए जाएंगे। अगर उस तनाजुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो तमाम डीएम्स हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने जो पोलिंग मराकज़ हैं उनके हवाले से जो फहरिस्तें हैं वो उनसे मांगी गई हैं, तलब की गई हैं, और इस हवाले से एक एक्सरसाइज जो है वो शुरू किया गया है। यानी दाखिला वजीर के बयान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अक्टूबर नवंबर के महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो सकते हैं और इस हवाले से किसी भी वक्त मरकजी सरकार एक हतमी ऐलान करेगी। लेकिन दूसरी जानिब जब हदबंदी हुई है और हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन को मुतहरिक रहना पड़ता है इस वजह से कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर जब काफी वक्त से इलेक्शन नहीं हुए हैं तो अपनी जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है, इलेक्शन कमीशन की है कि वो इंतखाबात की तैयारी अज खुद करे और उस हवाले से वोटर फहरिस्तें हो या चुनावी मराकिज हो या दीगर मामलात हो, उसके लिए डिपार्टमेंट को अपनी स्तर पर मुत्तहिद रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त सरकार जो है ऐलान कर सकती है। तो हदबंदी के बाद एक लाजमी अमल बन चुका था इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि वो अपनी सफ जो है वो मुकम्मल करे और अपनी तैयारी मुकम्मल करे। तो दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से जब आपने कश्मीर में हुआ चाहते थे तो मुझे याद है कि एयर सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया जाते थे। बुजुर्ग सियासी रहनुमा जो थे, चाहे वो उन्हें कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर चुनावी जलसे करने हो, बानिहाल, चनारी, रामबन जाना हो, मंजाकूट या छंब जाना हो, तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं से एयर सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी एक माहौल बनता था और डेमोक्रेसी की खूबसूरती के वो चार चांद और लग जाते थे। लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी मखासमत, मरकज के साथ जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों की दूरियां, पहली बार ऐसे चुनाव होंगे जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे उन्हें मनसूख कर दिया गया। 280 नए कवानीन जम्मू कश्मीर में फिल वक्त राइज हैं। इस सूरत हाल में जहां एक तरफ सियासी पार्टियां ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग होती जा रही है, चाहे पीसी हो, अपनी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, बाकी पार्टियां हो, लेकिन जो बाकी मामलात हैं जम्मू कश्मीर पार्टियों के अपने, कि क्या वो पीएचडी में साथ जाएंगे, किस तरह के उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, ऐसे तो फिलहाल आसार ही नजर नहीं आते हैं कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को धनक तक लगी है कि शायद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों। देखिए तजम्मुल, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं या कुछ नेशनल पार्टीज बीजेपी को छोड़कर हैं, वो काफी डिसअपॉइंटमेंट उनमें नजर आ रही है। उनमें जो अदम एतमाद मरकज के तई या मरकजी सरकार के तई अभी भी नजर आ रही है, और यही वजह है कि वो अपने आप को एक पसमानदा सियासी तौर पर अभी समझ रहे हैं और इस पर कोई तवक्का बीजेपी सरकार के नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जमातें अभी इलेक्शन कमीशन के या मरकजी सरकार के उस ऐलान का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो जाएं। जिस दिन जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराने का बिगुल बजता है और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से ऐलान किया जाता है, ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल तेज हो जाएगी और उसके बाद जो हम ख्याल जमाते हैं, बीजेपी के मुखालिफिन की मैं बात कर रहा हूं, तो उनमें जो तसलसल है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद आपसी मशावरत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, तो इस हवाले से वो अपने आप चुप्पी साधे हुए हैं और अगर कोई मीटिंग हो भी रही है तो वो 2 अफराद 3 अफराद लीडरान के दरमियानी महदूद है। अभी पब्लिक में वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी, श्रीनगर से बराह रास्त मेरे साथी सहयोगी मीर हिलाल हांजूरी तफसीलात दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अब मरकज ने क्या कुछ करना है, अब इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ करना है। अगर जराया का यकीन किया जाए तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर के तमाम अजला कमिश्नरों को यानी डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत जारी की है कि वो 20 जून से कबल तमाम पोलिंग स्टेशनों को एक बार फिर मुतहरिक करने के लिए इकदाम उठाएं। हदबंदी कमीशन में नए इलेक्टोरल वार्ड्स बनने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ बिगुल बजना बाकी है, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात 1987 के इंतखाबात से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब की बार रीजनल पार्टीज ने 5 अगस्त के बाद
जो जिन आर्टिकल्स की मनसूखी पाई गई उनको दोबारा रेस्टोर करने का वादा उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती करती है, जबकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी सज्जाद गनी लोन कहते हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में है और पुरअमन तरीके से उन्हें जरूर इंसाफ होगा और वो भी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर, कारगिल, लद्दाख ये एक साथ रहे। इंतखाबात के इस माहौल में कुछ दिनों के बाद हलचल तेज होगी, लेकिन सिक्योरिटी सिनेरियो को भी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में लगातार और उससे कबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने मीटिंगें ली, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ साथ अहम ओहदेदार मौजूद थे। नाज़रीन, इंतखाबी माहौल कब कुछ बनेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुलगाम में एक स्कूल टीचर के इंतकाल के बाद, उन पे गोलियां चलाने के बाद, जिस वक्त वहां एहतजाज भी हुए और क्योंकि इनका शेड्यूल कास्ट ट्राइब से इनका ताल्लुक था और बहुत सारी हेड मिसेस या टीचर्स ये चूंकि हिस्ट्री का मजमून पढ़ाती थी, मैं आपको बता दूं इसमें कुछ सनसनीखेज इंकशाफात आ चुके हैं। मज़कूरा टीचर, खातून टीचर के खामिद ने कल जो बातचीत की जम्मू में मुख्तलिफ ज़राए अबला के नुमाइंदों के साथ, उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मौकों पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को यह राय दी थी कि मज़कूरा टीचर का तबादला इससे बेहतर स्कूल में किया जा सके, क्योंकि गोपालपुरा में जिस स्कूल में यह वाकया पेश आया, कहते हैं कि वहां पर एक गली जो सुनसान सी रहती है और यही मौका है जिस वक्त बंदूक बरदारों ने इसका गलत फायदा उठाया और मज़कूरा टीचर को गोलियां चलाकर लहूलुहान कर दिया। और कहा जाता है कि कई बार मुत्तलका डिप्टी कमिश्नर की नोट्स में भी लाया गया, ये जो गली है इस गली से आपको ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मिलेगा, जिसके बाद बताया जाता है कि यहाँ पर इस एरिया से, क्योंकि ये कल की तस्वीरें नाज़रीन आज की नहीं है, कल की फाइल शॉट्स हैं, जो कल की सूरत हाल थी। स्कूल के बाद बच्चे बेहोश हो गए थे जब उन्होंने अपनी रजनी मैम को गोलियों में लथपथ पाया। अब बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ ये हुआ कि उसके बाद उनके हस्बैंड ने डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर मीर तसद्दुक से श्रीनगर में मुलाकात की थी उनके ऑफिस में और उन्हें फौरी तौर पर उनके तबादले एक ही स्कूल में कराए थे। इत्तेफाक देखिएगा, मियां बीवी का तबादला एक महफूज स्कूल की तरफ किया जा चुका था। रात गुजर गई, ज्वाइनिंग करनी थी, वाकया पेश आया और इससे पहले उनके खामिद ने कहा कि चूंकि उनकी बच्ची वो अब जम्मू स्कूल में मुंतकिल हो जाएगी, वो अपना तबादला अब जम्मू चाहते हैं और कुलगाम के बजाय, जनूबी कश्मीर के बजाय अब वो मजीद जो है अपना जो तालीमी करियर है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी जो थे अलग अलग स्कूल में टीचर थे और शेड्यूल कास्ट जुमरे में आते थे। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट टीचर्स, हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स और उससे ऊंचे ओहदेदार जो हैं श्रीनगर और वादी के मुतअद्दिद इलाकों में तैनात हैं। लेकिन इस खबर के पस मंजर में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया और जो स्निफर डॉग्स यानी सूंघने वाले कुत्ते जो हैं उनको भी काम पे लगाया था, जिसके बाद ऑर्चर्ड्स और आसपास में खेत खलियान में इसको कहीं ना कहीं सबूत हासिल करने की कोशिश की जा। ऋषि खजूरिया के पास चलते हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त सांबा के आसपास में इस टीचर के कत्ल के बाद, इंतकाल के बाद अब कैसा माहौल ऋषि खजूरिया आपके सांबा में है इस वक्त? पर अंतिम संस्कार के लिए जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। यहाँ पर अंतिम संस्कार उनका हो रहा है और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरह से कल कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है रजनी बालाजी की, उसके बाद लोगों में भी रोष देखा जा रहा है, परिवार के सदस्यों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। उस छोटी सी बच्ची की बात करें रजनी बालाजी की तो वो भी काफी मायूस नजर आई। लेकिन आपको बता दें कि अभी आज सुबह थोड़ा सा माहौल यहाँ पर खराब हुआ। तमाम कश्मीर टीचर पहुंची श्रद्धांजलि देने के लिए, तमाम भाजपा कैडर के नेता यहाँ पर पहुंचे, रविंदर रैना हो, एमपी युगल किशोर शर्मा हो या तमाम अदर नेता हो, उनका यहाँ पर घेराव किया गया है अंतिम संस्कार से पहले और भाजपा के खिलाफ जो नारेबाजी हुई है और उसी के साथ साथ एलजी प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है और एलजी प्रशासन को ये गुहार लगाएगी कि वहां पर तमाम जो यहाँ टीचर कम्युनिटी हो या फिर तमाम जो जम्मू से लोग वहां पर कार्यरत हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए या फिर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उनको वापस लाया जाए। ये मांग उनकी आगे रखी गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर उसके बाद परिवार के सदस्यों ने और टीचर कम्युनिटी ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए यहाँ पर नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया। अभी फिलहाल यहाँ बात करें तो डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज, एडीजीपी मुकेश सिंह, डिफकॉम जम्मू, तमाम ये लोग पहुंचे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तमाम अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ और परिवार को यहाँ पर जो वो समझाया जा रहा है, उनके साथ संवेदना व्यक्त की जा रही है और उनके बातों को सुना जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम एलजी साहब से बात करेंगे, उसका कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाएगा। लेकिन आप बाइज़ फिलहाल जो
बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया। अंतिम संस्कार के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा, पुलिस फोर्सेस के सीनियर अफसरान खुद वहां पे मौजूद हैं। और अब चूंकि बहुत सारे लोग जो पंडित महाजरीन हैं या प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर या वादी के मुतअद्दिद मकामात पर अपने फराइज अंजाम देते हैं, और इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और बाकी जो डोगरा तबके से वाबस्ता असातिज़ा है या मुख्तलिफ महकूमों में है, वो भी चाहते हैं कि उनके तबादलों को फौरी तौर पर अमल में लाया जाए ताकि इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई राह हमवार की जा सके। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत के 8 साल मुकम्मल किए। 8 साल के मुकम्मल होने के दौरान जम्मू कश्मीर ज्यादातर सुर्खियों में रहा। तामीर और तरक्की, विकास या उसके बाद मरकजी स्कीमें अपनी जगह, और कोविड-19 और यूक्रेन से शहरियों की सही सलामती वापसी का मामला अपनी जगह, और खारजा पॉलिसी को लेकर अमेरिका और मिडल ईस्ट के ममालिक में दुबई और बाकी इलाकों में जिस तरह से खारजा पॉलिसी ने काम किया वो अपनी जगह। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर अलहदगी पसंद लीडरान के खिलाफ जबरदस्त शिकंजा कसा गया और तंजीमों को ममनू करार दिया गया, जिनमें जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट समेत दीगर तंजीमें भी शामिल हैं, दुख्ताना मिल्लत और बाकी तंजीमें। इस तरह से अब हुर्रियत लीडरान के खिलाफ या अलहदगी पसंद सोच रखने वाले अजहान को मुख्तलिफ तरीकों से या तो डिटेंशन सेंटर या जेलों में बंद कर दिया गया, और उनके प्रेस रिलीजेस और उनके दफातरों का काम तकरीबन ठप सा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम लीडरों को भी वजीर आजम ने आराम और इत्मीनान से थोड़ा सा परहेज करने को कहा। पुरअमन जद्दोजहद के अदवार भी रहे, एहतजाज भी किए। डिटेंशन सेंटर्स में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसी अजीम शख्सियत, सियासी रहनुमा, 3 बार के वजीर आला, 1 बार के मरकजी वजीर और मौजूदा पार्लियामेंट मेंबर डिटेंशन सेंटर में रहे। और शेख अब्दुल्ला के पोते उमर अब्दुल्ला को भी काफी वक्त डिटेंशन सेंटर में गुजारना पड़ा। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती, जो कि साबिक होम मिनिस्टर की बेटी है मुफ्ती मोहम्मद सईद की, और जम्मू कश्मीर वजीर आला रह चुके और यूनियन मिनिस्टर रह चुके मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और साबिक मुख्यमंत्री, उन्हें भी वक्त गुजारना पड़ा। इसी तरह से सज्जाद गनी लोन काफी वक्त तक जेल में रहे, और इसके अलावा डॉक्टर शाह फैसल को भी बहुत वक्त तक जेल गुजारना पड़ा। और इससे कबल जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने किसी भी मौके पर इस तरह की सूरत हाल पेश नहीं आई जब मेन स्ट्रीम पार्टियों को अपने ही मरकजी लीडरान ने जेलों में वक्त गुजारने के लिए कहा हो। अवाम के लिए भी यह मामला ज्यादा बेहतर नहीं रहा। अवाम 5 अगस्त के बाद मरकज के वादों को शब रोज एक से एक गिनाने लगे हैं। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर यह बहस है, विकास, तामीर, तरक्की, एम्प्लॉयमेंट, अमन वो कहां है। जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम लीडरान कोसते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि अमन रहा, उन्होंने कभी कहा नहीं कि जम्मू कश्मीर के मसाइल हल हो चुके हैं, बल्कि वजीर आजम तमाम साबिक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कहा कि यह तामीर और तरक्की का मसला नहीं बल्कि इसे सियासी नवियत से हल करना होगा। इसी बीच में मोदी हुकूमत के रहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। 40 सीआरपीएफ एहलकारों की हत्या के बाद या उस धमाके के बाद, आईडी ब्लास्ट के बाद, उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया, और उसके बाद मुल्क के मारूफ कमर्शियल पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने अपनी तहवील में लिया, कुछ दिनों के बाद वापस भारत के हवाले किया। और इसी बीच पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं रही। वज़ीर आज़म के 8 साल मुकम्मल होने के बाद यख पिघलता नजर आया। जम्मू कश्मीर के लीडरान को शायद अब मौका होगा कि वो मेन स्ट्रीम कल्चर को दोबारा रिवाइव करे, और असेंबली इंतखाबात के लिए शायद बिगुल किसी भी वक्त बच सकता है। लेकिन अलहदगी पसंद सोच में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासिर मलिक को उम्र कैद की सजा मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में ही सुनाई गई। आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, हज 2022 की बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 या पेंडेमिक के बीच में हुजाज किराम जो हैं वो सफर महमूद पे रवानगी से महरूम हो चुके थे। अब 65 बरस के ऊपर जो शहरी होंगे उन्हें फिलहाल हज पे जाने की इजाजत नहीं होगी। बड़ी खबर, हज के लिए जाने के लिए आपको 65 बरस से कम उम्र होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 और बाकी मामला को लेकर इस वक्त जो हज की तैयारियां हैं उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपको सारा काम निभाना होगा, और आप
احرام پہننے کے بعد جب آپ عبادتوں کا سلسلہ شروع کریں گے، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو آپ کو اپلیکیشن کے ذریعے سے طواف تک پہنچنے اور باقی پاک جگہوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن کا سہارا لینا ہوگا۔ ادھر عازمین کے حج کا سفر جو ہے، حکومت نے دعویٰ کیا کہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انتظامیہ کی طرف سے حج 2022 کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ریزیڈنشل کمپلیکس، ڈپارچر ہال یعنی روانگی سے، ویکسینیشن روم، ہیلتھ سینٹر پر مزید اقدامات بہتر کرنے کی ضرورت۔ اب کی بار ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کا بڑا اہم رول ہوگا، جس میں جموں کشمیر سے حجاج کرام یا سفر محمود پہ جانے والوں کے لیے ویکسینیشن اور اس کے بعد جو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ کرنے بڑے لازمی ہوں گے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ کانگریس کے سینئر نیتا سابق مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد کو راجیہ سبھا کے انتخاب میں کانگریس پارٹی نے نامزد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر اس لیے بڑی اہم ہے کیونکہ گزشتہ کچھ دنوں سے G23 اور معروف سیاستدان کپل سبل کی آواز الگ سے آنے کے بعد ہو سکتا تھا کہ غلام نبی آزاد کو اعتماد میں لے کر انہیں کسی اسٹیٹ سے راجیہ سبھا انتخابات میں امیدوار کے طور پر سامنے لایا جا سکتا ہے، لیکن قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ 10 جنپد سے خبر آئی ہے کہ کانگریس کی سپریمو سونیا گاندھی نے غلام نبی آزاد کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور انہیں بتانے کی کوشش کی کہ آخر راجیہ سبھا برت کے لیے یا اس انتخاب کے لیے ان کا نام تجویز کیوں نہیں کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ غلام نبی آزاد کو کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری یا اس کے آس پاس میں ایک بڑے تنظیمی عہدے سے سرفراز کیا جائے گا، کیونکہ کانگریس پارٹی کی ملک میں اس وقت مستحکم پوزیشن نہیں بن سکتی ہے۔ ناظرین، کل شام یہ خبر آئی کہ شب کے دوران شلوت سنبل بانڈی پورہ میں سڑک حادثہ پیش آیا اور جس میں آگ لگنے کی بھی خبریں آ رہی ہے۔ اچانک ٹرک میں آگ لگنے سے موقع پر ہی کنڈکٹر جھلس گیا اور انہیں فوری طور پر اسپتال پہنچانے کی کوشش کی گئی، جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ کنڈکٹر کا علاج و معالجہ چلنے کے بعد انہیں بچایا نہیں جا سکا، کنڈکٹر از جان ہوا اور ڈرائیور زخمی ہوا۔ ہمارے نمائندے بٹ ظہور کے مطابق اس موقع پر وہاں پر مقامی لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس بچاؤ آپریشن میں بھی حصہ لیا، اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ جب اس طرح کا حادثہ ہم نے دیکھا ہوگا۔ دراصل گزشتہ شب ایک ٹرک میں آگ لگنے سے اس کا کنڈکٹر جھلس گیا۔ باڑی پورہ کے شلوت سنبل علاقے میں سری نگر شہرہ پر منگل اور بدھ کی درمیانی شب سیمنٹ سے لدی ایک ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ٹرک کا ڈرائیور اور کنڈکٹر جھلس گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں کو علاج و معالجہ کے لیے JVC اسپتال سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں کنڈکٹر زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ بیٹھا۔ متوفی کنڈکٹر کی شناخت 26 برس کے راکیش سنگھ ولد درشن سنگھ ساکن چھنی جموں، جبکہ ڈرائیور کی شناخت 28 سالہ اجے سنگھ والد وارڈن سنگھ ساکن بٹوت اور رامبن کے بطور ہوئی۔ دریاسنا پولیس نے اس ضمن میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ آگ لگنے کی وجوہات کو جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، انجمن اردو صحافت کے صدر ریاض احمد ملک، آن لائن ایڈیٹر کشمیر عظمیٰ، سینئر صحافی ان کے برادر اصغر ظہور احمد ملک گزشتہ روز انتقال کر گئے۔ لواحقین کے مطابق گردوں کی بیماریوں میں مبتلا ظہور احمد ملک گزشتہ 6 برسوں سے علاج و معالجہ پہ تھا، لیکن اچانک درد ہونے کے بعد انہیں سری نگر منتقل کیا گیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ انجمن اردو صحافت کے صدر ریاض احمد ملک کے ساتھ صحافی برادری کے ساتھ ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ سمیت اہم سیاسی شخصیات نے ریاض احمد ملک کے ساتھ اظہار ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دوپہر خبرنامے میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اردو خبرنامے سے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔